Good morning, students. Today I will discuss about the sign convention for lenses. It has so many importance, especially when you want to solve the different types of numerical problem. That concept will be very helpful for all of you, right? Because if your sign is not properly put on the numerical problem, then the result will be totally different. So here we discuss what are sign convention, what are its importance, and how you can compare the result with the images formed by the lenses for different positions of the object. Now, first of all, I want to give some idea about the sign convention. In case of convex lens, firstly, suppose that is the lens. All of you know that this is convex lens, right? Now draw a line. That line is already all of you know that is the principal axis. We take 2 points in right side F and 2F. The distance should be equal to F and 2F. Right? And in this case also there are two focus F and F1, F2. It is 2F. Right? This will F2, this will F1. But here I write only F2F and F2F for convenient point of view. Always the direction of the incident ray will be from left to right. That is not the law, not the rule, right? But for the convenience point of view, you take the direction of the incident ray from left to right. Left to right. डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होगा? लेफ्ट टू राइट होगा हमेशा. और all the distances will be measured from where? From optical center. So optical center will be the origin. Just like in the case of Cartesian coordinate, I think all of you are know about the Cartesian coordinates. As in the case of Cartesian coordinates, we take the distance left of the origin is positive, right of the origin is positive, left of the origin is negative. In upward position from x-axis is taken as positive, and in downward direction that will be negative. In similar case, you can compare. Similarly, you can compare this Cartesian coordinate with the sign convention for lenses. The position of O is just like the position of O in Cartesian coordinates. That is the x-axis. Suppose in any point you want to have all F, object is the left side of the origin, right, or optical center. So what should be the sign of the object distance? That is known as the object distance U from O to this. That is object. So in case of convex lens, U equal to what? U should be negative. Right? And as all of you know that the second focus F2 is taken as the focus of the convex lens. So this distance, that is small f is the focal length. All of know about small f, small u, small v in case of mirror. So small f sign will be what? The sign of small f will be positive in case of convex lens. And now what is the sign of v?
it has also very importance. So for that you have to remember the positions of the image corresponding to the position of the object. So if the object is real object, real image जब formation होगा, in the case of real image, what the direction of the V will be positive, because that is the phenomena of refraction. All the real image form the right side of the lens, right? ये यहाँ पे बनेगा बहुत छोटा छोटा, याद करें आप, बराबर, बड़ा और बहुत बहुत बड़ा. All these images are inverted. Inverted images are sign of real image. So in all these cases, what happens? The real image is formed. So V will be what? Positive. In case of real image. Right. Now, when the object is put in between the F and O, that is the special case, all of us aware from that, the position, one and only one position, when the object is kept between optical center and focus, that image will be formed in the same side of the object, right? And that will be V, but that V will be minus, and that V will be what? V will be less. So in case of virtual image, the sign of the V will be what? Negative. In case of virtual image. Am I right? So in such a way, the sign of U, F, V and V का दो condition हुआ. First for the real image and second for the virtual image. Now I talk about the magnification. What is the sign of magnification? हम चाहते हैं कि हम एक ही बार आपको बता दें, मैग्निफिकेशन के बारे में भी बताएंगे हम, लेकिन यहाँ पर साइन का चर्चा कर लेते हैं. तो देखो, मैग्निफिकेशन का हम लोग होता है इस केस में, लेंस के केस में वो होता है V/U. क्या होता है? V/U. और ये तो सबके लिए होता है HI/HO. तो अगर रियल बनेगा, अगर रियल इमेज बनेगा तो देखो HI क्या होगा? नीचे है, ये होगा निगेटिव, और H हमेशा क्या होता है? HO हमेशा होता है पॉजिटिव. ये भी क्या होगा? पॉजिटिव. ये क्या होगा? निगेटिव. ये क्या होगा? निगेटिव. तो आप बोलो तो ये निगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा? निगेटिव, राइट? तो M का साइन क्या होगा? निगेटिव होगा. कब होगा? जब रियल इमेज बनेगा तब होगा, माय डियर. नाउ व्हाट इज द साइन ऑफ M? व्हाट इज M? M इज द लीनियर मैग्निफिकेशन. इसका साइन भी देखो क्या होगा. अगर हम इसी तरह से अगर सिंपली इसको ले HI/HO, तो देखो ये क्या होगा? ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव होगा. देखो ये पॉजिटिव है ना, और ये भी क्या है? पॉजिटिव है. पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा, राइट? ये किस केस में होगा? इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, राइट? इस तरह से हम आपको भी चर्चा की क्या, UVF का साइन क्या होगा, मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा. अगर इसको आप चाहो कि नहीं सर हम V और U के टर्म में जाना चाहते हैं, तो वेरी नाइस सर, माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखो V किधर है? V पॉजिटिव, और ये क्या होता है? निगेटिव. पॉजिटिव बाय निगेटिव में क्या होगा? अगर इस केस को ही बच्चे चाहे नहीं सर हम इससे चाहते हैं निकालने के लिए, किससे? इस केस में, तो देखो तो V क्या होगा? पॉजिटिव. V इस केस में क्या होगा? रियल में बनेगा तो क्या होगा? निगेटिव. और U क्या होता है? ये पॉजिटिव, और ये क्या होगा? निगेटिव. तो फाइनली क्या आया आपका? निगेटिव आया. और अगर इस केस में भी चाहते हैं निकालने के M, ये रियल केस में ऐसे भी निकला, और ये भी पॉजिटिव और U निगेटिव. चलो, अब अगर हम चाहते हैं ना इस केस में से जाने सर, तो यहाँ पे देखो क्या होगा? HI क्या होगा? HI ये इधर बना, भी किधर बना? भी इधर ही हुआ, इधर ही हुआ इस केस में, तो ये भी हो जाएगा. इसका भी पॉजिटिव और आपका ये निगेटिव, ये भी निगेटिव और U भी क्या है? निगेटिव. निगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा? पॉजिटिव. तो ऐसा नहीं है कि हम केवल इसी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आपको आसानी होगी क्योंकि इसमें पोजीशन का ख्याल रखना नहीं पड़ेगा. केवल रियल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है. अगर रियल बनेगा तो
इन्वर्टेड होगा तो साइन माइनस होगा, और वर्चुअल बनेगा तो आपका एच आई का भी साइन पॉजिटिव होगा, राइट। बस इसी से हम लोग निकाल लेंगे, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, ये ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग चर्चा कर लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बारे में बताएंगे हम बाद में कि इसका वैल्यू कब से ज़्यादा और कम होगा, इस चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम फिर भटक जाएंगे अपने टॉपिक्स। ये साइन कन्वेंशन हो गया। अब आपको याद करें कि कॉनकेव के लेंस में, कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा, ये तो सर आप बता दिया। इसके कॉनकेव के लेंस में, लेंस के केस में क्या होगा। अब ध्यान दो कि क्या होता है कॉनकेव लेंस में। एक हम आपको इमेज बना देते हैं कॉनकेव लेंस में भी उसी तरह से, क्योंकि इसमें हर के केस में क्या बनता है, ओ और एफ के बीच ही बनता है। तो यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पे 2f होगा, बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना उसमें, ठीक है। और ये देखो ये आपका एफ है और ये हमारा 2f, राइट। सपोज ऑब्जेक्ट आपको आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हुए हो, ऐसे नहीं जाएगा, हम भी बना देते हैं जान करके, पूछता है एग्जाम में बराबर, ऐसे हो गया और ओ से पास करा देंगे लाइन, देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, डॉटेड दिखा रहे हैं, देखो, नहीं, अगर ये है ये बी है, यहाँ क्या बना, ए डैश बी डैश। हाँ, इंफिनिटिव रहेगा तो फोकस पे बनेगा, हम इसकी चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, यू है, यू का साइन क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड है, माइनस होगा। और भी हमेशा क्या होता है, और एफ के बीच बनता है, भी क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, राइट। और इसका एफ क्या होता है, एफ इसका निगेटिव होता है, क्योंकि इसका F2 इधर है, इसका F2 इधर हो जाता है, पलट जाता है, राइट, उधर तो रह जाएगा नहीं। तो अब देखो हम लिखते हैं, इसका यू क्या होगा, निगेटिव, है ना, फॉर ऑल केस, फॉर ऑल केसेज, इसमें भी फॉर ऑल केसेज लिख सकते हो, फॉर ऑल केसेज। इसमें आप ध्यान क्या रखना है कि द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और दैट इज नॉट रूल, दैट इज फॉर कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, अब हम चर्चा करें एफ, तो ऐसे भी याद रखना, इसका एफ क्या होता है, पॉजिटिव, इसका एफ क्या होता है, निगेटिव, है ना। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, आपको लग रहा होगा सर बार बार क्यों सर लिख रहे हैं, आप लिख दिए कॉनकेव लेंस, आप भी लिखेंगे और हर बार लिखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। एफ हो गया। अब देखो, अब हमारी बात आएगी भी पे। देखो भी के लिए क्या है, भी हमेशा इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस के केस में हमेशा जो भी होता है वो ओ और एफ के बीच लाई करता है, केवल रहेगा इन्फिनिटी पे तो एफ पे बनेगा, राइट। तो भी का क्या आया, ऑप्टिकल सेंटर के किधर आया, लेफ्ट साइड आया, ये क्या होगा, निगेटिव। फॉर ऑल केसेस इसमें लिख देते हैं, फॉर ऑल केसेस। अब आपका होगा एम का वैल्यू क्या होगा, तो एम जब हमेशा बनता ही है, फॉर्मूला वही लगेगा, वी बाई यू और एच आई बाय एच ओ। देखो यार, अगर इसको लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, इसको भी लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव बाय निगेटिव, राइट। तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, और इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव, राइट। तो फाइनली क्या निकला, एम इक्वल टू पॉजिटिव, कब, फॉर वर्चुअल इमेज, राइट। अब आप देखिए यहां भी क्या आया था, वर्चुअल केस के लिए क्या आया था, देखो वर्चुअल केस के लिए क्या आया था, पॉजिटिव आया था ना, और यहां भी क्या आया, पॉजिटिव आया। तो आप ये भी ध्यान, आप मेरा कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको कि फॉर बोथ टाइप ऑफ लेंसेज, इफ एम इज पॉजिटिव, इफ एम इज पॉजिटिव दैट मीन्स रियल इमेज, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, इफ एम इज पॉजिटिव दैट मीन्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, एंड इफ एम इज नेगेटिव दैट मीन्स रियल इमेज इज फॉर्म्ड, राइट। अब हम आते हैं नया टॉपिक पे कि एम का वैल्यू सर क्या होगा, है ना, अलग अलग क्राइटेरिया में। ये आपका साइन कन्वेंशन हो गया, एक बार आप चाहोगे तो आपने देख लेना, यू देखो, अब देखो अगर उसको शॉर्ट ये कॉन्सेप्ट फॉर्म में देखो ब्रीफली और समराइज करके देखो, एनालिसिस करके देखो, तो देखो क्या होता है, इसका भी यू पॉजिटिव निगेटिव, इसका यू निगेटिव, राइट। देखो एम रियल के केस में निगेटिव, यहां तो रियल बनता नहीं, एम वर्चुअल इसमें भी, एम वर्चुअल इसमें भी,
कब? इसमें जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो m होगा क्या? पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, इसकी बात कर चुके हैं। कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा? f पॉजिटिव, इसमें क्या होगा? इसका अपोजिट निगेटिव। और m के बारे में तो बता ही दिया, m का नेचर सेम है ना, u का भी सेम है, खाली f याद रखना है। कॉन्वेक्स लेंस का f क्या होता है? पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस का f क्या होता है? निगेटिव। अब थोड़ा सा और पीछे कर जाओ तो ठीक इसके अपोजिट होगा। इसमें मिरर में क्या होता है? f होता है, कॉनकेव का f होता है निगेटिव, कॉनकेव का f क्या होता है? निगेटिव। और यहां देखो तो कॉनकेव का क्या हुआ? यहां भी कॉनकेव का f क्या है? निगेटिव, याद रह जाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर का भी f क्या होता है? पॉजिटिव। और कॉन्वेक्स लेंस का भी क्या होता है? फोकस पॉजिटिव। तो माय डियर स्टूडेंट, देयर आर सो मेनी एंगल्स, है ना, बाय विच यू कैन क्लियर आवर कॉन्सेप्ट, राइट। बहुत तरह का एंगल है, जैसे फोटो होता है ना, फोटो खींचता है लोग डिफरेंट एंगल्स पे, और अलग अलग फोटो आता है। आदमी तो सेम रहता है, रिलेटिव सेम है ना। बुरा नहीं मानोगे, थोड़ा हंस लो। फोटो खींच एक, है ना, गाना, तो डिफरेंट एंगल में है, तो डिफरेंट तरह से वो चाहता है उसको दिखाना, शो करना कि देखो व्यक्ति का कैसा रूप है। तो हम डिफरेंट एस्पेक्ट में, डिफरेंट सिचुएशंस पे हम एनालिसिस करें चीजों को और जोड़ें, तो जानते क्या होगा? तुम्हें हमेशा याद रहेगा, है ना, कि कैसे होता है, राइट। अब चाहोगे कि m का वैल्यू कब 1 होगा, m का वैल्यू 1 से कम होगा, m का वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगा, m का वैल्यू -1 या सॉरी माइनस नहीं होगा, -1 हो ही नहीं सकता, राइट। आप सोचोगे m का वैल्यू -1 नहीं हो सकता, होगा, और कब होगा? सोचो। इस केस में देखो तो अगर ये f 2f पे रहेगा, क्या बनेगा? 2f पे बनेगा। m का वैल्यू -1 होगा, कब होगा? जब ये कॉन्वेक्स लेंस होगा तब होगा। और m का वैल्यू +1 कब होगा? जब मिरर होगा। कौन सा मिरर? याद करो, कॉनकेव मिरर होगा तब होगा। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में m का वैल्यू कभी भी क्या होगा? 1 नहीं होगा, 1 से कम होगा। साइन क्या होगा उसका? पॉजिटिव होगा, राइट। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस अराइजेज फ्रॉम द साइन कन्वेंशन। आपको एक आइडिया दिया कि m का वैल्यू 1 कब होगा, m का वैल्यू -1 कब होगा, m का वैल्यू +1 कब होगा प्लेन मिरर के केस में, राइट। m का वैल्यू कॉनकेव लेंस के केस में क्या 1 के बराबर होगा या 1 पॉजिटिव होगा, है ना। ये सारी चीजें आपको जानना होगा। पॉजिटिव होगा लेकिन 1 से कम होगा, किस केस में? कॉनकेव लेंस के केस में। तो डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। पावर के बारे में बताए थे आपको, आप जो पिछला वीडियो है उस पर देखिएगा कि पावर को हम लोग केवल f = 1/p=1/f के रूप में ना देखें, राइट। वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, देयर इज नो एनी फिजिक्स, बट बाय व्हाट अमाउंट ए कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेज द इंसिडेंट रे, है ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, राइट। ज्यादा अमाउंट में कन्वर्ज करता है, इसका मतलब हुआ उसका पावर क्या है? ज्यादा है। और कन्वर्जिंग नेचर अगर ज्यादा शो करता है ना, नेचर ज्यादा शो करता है मतलब क्या हुआ? ज्यादा एंगल से डेविएट करता है, किसको? इंसिडेंट रे को, राइट। तो उस केस में क्या होगा? उसका पावर ज्यादा माना जाएगा, है ना। मोटे लेंस का फोकल लेंस क्या होता है? कम होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से उसकी दूरी क्या होगी? कम होगी। तो उसको रे को ज्यादा एंगल से बेंड करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि रेडियस का कम हो गया, पाथ डिस्टेंस कम हो गया, ज्यादा एंगल से उसको टर्न करना पड़ेगा, राइट। अगर फोकस ज्यादा हो जाएगा तो कम एंगल से उसको टर्न करना पड़ेगा, एंगल डेविएशन क्या होगा? कम होगा, राइट। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, राइट। नॉट ओनली p = 1/f और f इन मीटर। और एक बात और ध्यान दे देते हैं, बताते हैं आपको, बहुत सी किताबों में लिखा हुआ 100/f, f इन सेंटीमीटर। माय स्टूडेंट, एक रास्ते पे रहो, हमेशा हम यूनिट को SI यूनिट में लिखते हैं, तो f इन मीटर लिख दें, क्या दिक्कत है, राइट। उससे हम देख रहे हैं, कॉपी चेक कर रहे हैं, ढेर सारे बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, इस बार भी आया था। तो p = 1/f, f इन मीटर, इसको ध्यान रखना। और एक फॉर्मूला और लिख देते हैं आपको, हालांकि उस दिन भी मैं लिखा होगा, लेकिन नाम लिखा हो तो ध्यान दोगे। वो होता है
नाउ आई राइट द फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f, और f को मीटर लेना है, इन मीटर, वो 100/f इन सेंटीमीटर सब नहीं करना है। आप देखो, अगर मान लो दो लेंस है और जो दोनों तरफ सटा हुआ है, मान के चलते हैं इस तरह से, राइट, ऐसा हो सकता है दोनों कॉन्वेक्स हो, ये भी कॉन्वेक्स हो, ये भी कॉन्वेक्स हो, ऐसा हो सकता है मान लो एक क्या है कॉन्वेक्स है और दूसरा है कॉनकेव। चलो इस तरह से एकदम सटा हुआ है, राइट, ये मान लो एकदम सटा हुआ है, जान के दिखा रहे हैं केवल, ये ऑप्टिकल सेंटर इसका भी हुआ, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये हुआ, मान लो डैश यहाँ पे वो है, वो डैश, दो लेंस है। अब ये क्या है, ये है कॉन्वेक्स और ये क्या है कॉनकेव, राइट। ऐसे केस में कैसे निकालोगे पावर? तो देखो इसमें मान लो एफ है, स्मॉल एफ लिखते हैं, मान लो ये इक्विवेलेंट फोकस कहलाता है, इक्विवेलेंट फोकस, राइट। ये क्या होता है इक्विवेलेंट फोकस, हम थोड़ा सा चर्चा कर देंगे बाद में। मान लो एफ है और इस दोनों का फोकस, इसका मान लो F1 इसका F2, यहाँ भी F1 है, इसका मान लो F2 है। वैसे केसेज में इक्विवेलेंट फोकस का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, राइट। और अब ये क्या हो जाएगा, अगर इसका पावर कंबाइन, दोनों लेंस को कंबाइन करने के बाद जो पावर आएगा उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा P1 प्लस क्या हो जाएगा P2, राइट। ये निकल गया आपको। ये सिंपली मान लो इसका वैल्यू अगर मान लो आता है 5D, इसका आता है मान लो 2D, तो आंसर होगा -2D। अगर मान लो दोनों का आता है 2D और इसका आता है 2D तो 4D होगा। ये सिंपली एक्सप्रेशन में जैसे करते हैं वैसे हम करते जाएंगे, कर लेंगे। अब रही बात कि अगर मान लीजिए सर दोनों के बीच में अगर गैप रहेगा तब क्या होगा, मान लीजिए गैप D है, उस केस में हो सकता है, राइट, इस तरह से मान लो अगर गैप है तब क्या होगा, तो जान लो ये सब है आपके स्टैंडर्ड से थोड़ा सा हट करके है। उसके फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 इंटू f2। ये आपका क्या हुआ, ये फॉर्मूला निकल गया। इक्विवेलेंट फोकस होता है दो लेंस किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जहां बनाता है, अगर एक सिंगल लेंस यहाँ पे लगा दें और उसका इमेज वहीं पे बनने लगे, उसके लिए जो फोकस होगा दैट विल बी व्हाट, इक्विवेलेंट फोकस फॉर दैट लेंस। समझ आ गया? तो मैंने फिर से बता दिया और ये साइन कन्वेंशन बता दिया, और कब m का वैल्यू ज्यादा होगा कम होगा चर्चा कर चुके हैं। और एक मिरर फॉर्मूला थोड़ा जान लो, ये प्रूफ आपको नहीं आता है ना, 1/v, ये हाँ जरूर लिखोगे। लेंस फार्मूला, हम लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला बता रहे हैं, लेंस इसमें होता है 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। थोड़ा सा ध्यान रखना। और मिरर फार्मूला केस में क्या होता है, मिरर फार्मूला जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाओगे तो ये जरूर लिखोगे फ्रॉम लेंस फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यही याद रखना है ना, लेंस में माइनस होता है और मिरर में प्लस होता है, ये जरूर ध्यान रखोगे और जरूर लिखोगे। बच्चे क्या करते हैं कि कभी लेंस फार्मूला लगा देंगे, कभी मिरर फार्मूला लगा देंगे। ओके।